All right, G. So in the last video, we looked into demand and supply of labor market. So today, the most important topic on which the entire labor market, the foundation of the entire labor market, that is the theory of marginal revenue product of labor. Marginal revenue product of labor. Sometimes they also refer it to as MRPT, marginal revenue product theory. So MRPL. Challenge. Let's start. It is the revenue each additional worker helps the firm generate. It is the change in total revenue of a firm / employer by employing an additional worker. MRPL is MPP into MR. Where MPP is marginal physical product, or simply the marginal product, and MR is the marginal revenue. Yes. क्यों? कैमरा लेफ्ट साइड पे नहीं ले सकते आप, ये लिख लें और स्पीड बढ़ाएं और टाइम पे आए. हरिया. हाँ जी. All right, G. What I want you to do is I want some of you to go to the very first lecture of producer behavior. The very first lecture of. All right. So go to the very first lecture of producer behavior. Okay. और मुझे जरा बताएं कि short run में how could a firm increase its output? By increasing only one factor of production that we assumed was labor. And when it did so, what did it experience? Increasing returns followed by decreasing returns. Do we remember that? Yes. चलें जी, इधर आ जाएं. This is quantity of labor. This is total output, total product. This is marginal product. Yeah, now we call it marginal physical product. This is marginal revenue, and this is MRPL. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. काफी है. हाँ जी. 0 बंदा है. The first worker I employ, let's suppose he helps us produce 50 units of a certain product. The second worker I employ will help me produce more or less initially. More than the previous one. Remember increasing returns? Each additional worker is more productive than the previous one. He helped us make 60 units. So total कितना हो गया?
160. The third worker is even more productive than the previous one. कितना हो गया? इसने 70 बनाया. टोटल कितना हो गया? यहां तक क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स. इसके बाद क्या शुरू हो गया? वी आर अज्यूमिंग कि इसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो गया. ईच एडिशनल वर्कर इज हेल्पिंग अस प्रोड्यूस लेस देन द प्रीवियस वर्कर. तो पिछले वाले ने 70, इसने 60. कितना हो गया? 50, 40, 30, 20. G, the first worker helped us produce 50 units. The second worker helped us produce 60, फिर 70, then 60, 50, 40, 30, 20. For those who do not know कि marginal product कैसे आता है, पहली बात के पता होना चाहिए. Secondly, 2-3 वर्कर मिलके हमें कितना बना रहे हैं? 180, जिसमें से पहले दो ने कितना बनाया है? पहले दो ने कितना बनाया? 110. तो थर्ड बंदे ने एडिशनल कितना बनाया? 70. Do we get this? Is this understood? बात समझ आई है? अच्छा जी. My bad. Do we have a space for one simple heading? अगर है तो एक दे दें. क्या दे दें हेडिंग? MRPL of a firm in a perfectly competitive product market. In a perfectly competitive product market. Perfect competition का जो product market था, उसका क्या सीन था? Do we remember it? All firms were price takers. उसका demand, AR और MR क्या होता था? Perfectly elastic. It was fixed. It was horizontal. Remember? Why? Because they were all price takers. तो MR उसका फिक्स्ड होता था. तो कोई भी MR ले लें, हर अगला यूनिट जो हम बेच रहे हैं वो हमें कितना रेवेन्यू दे रहा है? $10. चलें जी. नाउ पेन्स डाउन. अब बात को जरा समझें. अब हम देखने लगे हैं कि MRPL है क्या. अभी the first worker that I employed, he helped me make how many chairs? Let's suppose. कितनी कुर्सियां बनाई हैं इसने? 50. The first worker I employed helped us make 50 chairs. और हर चेयर में कितने की बेच पा रहा हूं? हर चेयर मुझे कितना रेवेन्यू दे रही है? 10. अब यहां क्या आप मुझे बता सकती है इस पहले बंदे ने मुझे कितने पैसे कमा के दिए? 50 कुर्सियां बनाई है और हर कुर्सी 10 रुपए मुझे दे रही है. इस बंदे ने मुझे कितने पैसे कमा के दिए हैं अभी? $500. दूसरे बंदे ने, रेहान, कितनी कुर्सियां बनाई हैं? 60. और हर कुर्सी कितने की मुझे रेवेन्यू दे रही है? इस बंदे ने मुझे कितने पैसे कमा के दिए हैं? Does this make sense? What is MRPL? हर अगला बंदा जो मैं रख रहा हूं अमान, what is the revenue he is helping me generate? हर अगला बंदा रख रहा हूं, वो मुझे कितने पैसे कमा के दे रहा है? बात समझ आई आपको? MRPL. पहले बंदे ने 50 बनाया, कितनी कुर्सियां बनाई? उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था? मार्जिनल होता है एडिशनल. कितना उसने चीजें प्रोड्यूस की? 50. और हर चीज रेवेन्यू कितना दे रही है? जो उसने प्रोड्यूस किया कितना दे रही है? MR कितना है? 10. इसका मतलब पहला बंदा मुझे कितने पैसे कमा के दे रहा है? 15 to 10 is 500. तो पहले बंदा जो मैंने रखा, पहला वर्कर, उसने मुझे कितने पैसे कमा के दिए? 500. अगले ने कितने कमा के दिए? 600, 700. आसान है, मुश्किल है?
वो तो आसान है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? एमआरपीएल पैसे समझ आई बात? ये बढ़ क्यों रहा है और फिर गिर क्यों रहा है? सेम ओल्ड रीजन, सेम ओल्ड क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न्स फॉलोड बाय डिक्रीजिंग रिटर्न्स। चलेंगी, पेन चला दें स्पीड में, पढ़े जरा वापस जाके। It is the revenue each additional worker helps the firm generate. It is the change in total revenue caused by employing, एक बंदा आपने रखा, फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू मार्जिनल रेवेन्यू, कि वो कितने पैसे कमा के दे रहा। कैसा? आसान है मुश्किल? जी सीत भाई किधर है? साथ ही है, क्या बात है। हाँ जी, इज दिस क्लियर? दोबारा हेडिंग दे दे। MRPL of a firm in imperfect product market. प्रोडक्ट मार्केट सादी मार्केट है, फिर अभी लेबर मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, वो और चीज है। ये प्रोडक्ट मार्केट जो बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, वो जो सादा जो हमने पढ़ा था, वो इम्परफेक्ट है, मोनोपोली है या कुछ ऐसा है। मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं, जरूरत नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू, एमआरपीएल। हाँ जी, वही मार्जिनल प्रोडक्ट दोबारा बता दें मुझे कितना था? 50 60 70, 60 50 40 30 20। हाँ जी, what is the difference between these two? What is the difference between these two? बता सकते हैं? उधर प्रोडक्ट मार्केट क्या थी? परफेक्टली कंपेटिटिव थी, दैट मींस उसका प्राइस टेकर थी, तो प्राइस डिमांड ए आर एम आर फिक्स था। इम्परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट का क्या सीन था, याद है कुछ? इसका डिमांड और ए आर डाउनवर्ड स्लोपिंग था, एंड एम आर और इवन स्टीपर, मार्जिनल रेवेन्यू वाज इवन स्टीपर। डू वी रिमेंबर दैट? तो सिर्फ मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ऊपर देखिए मैंने मार्जिनल रेवेन्यू क्या लिया था? फिक्स्ड, 10 10 10 10 10। इधर मैं क्या ले रहा हूं? इधर मैं उसको कर देता हूं, फिक्स कर देता हूं। लेट सपोज कितना फिक्स चेंज कर देता हूं? 10 9, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना? 7 6 5 4 3। हाँ जी, पहले बंदे ने कितने पैसे कमा के दिए? दूसरे बंदे ने कितना रेवेन्यू अर्न करके दिया? तीसरे बंदे ने 7 6 जार 7 6 जार 5 6 जार नहीं, 5 4 जार 20 होता ना। इसके अंदर क्या फर्क पड़ा है? वही आया है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स, बस फर्क क्या पड़ा है? ये थोड़ा सा स्टीपर बनेगा, ये जो एमआरपीएल बनेगा ये थोड़ा सा क्या बनेगा? स्टीपर बनेगा। यहां पे ले लें रेवेन्यू, और यहां पे ले लें क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये देखें, और फिर एक और दफा ले लें। क्या फर्क है?
ये जो MRPL है ये किसका है? प्रोडक्ट मार्केट इज परफेक्ट। और ये क्या है? प्रोडक्ट मार्केट इज इम्परफेक्ट। MRPL प्रोडक्ट मार्केट परफेक्ट हो इम्परफेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ एक डिफरेंस है, क्योंकि उसका MR गिर रहा होता है, तो इम्परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट अगर होगी तो उस फर्म का MRPL जरा ज्यादा स्टीपर होगा। ये एमसीक्यूज में सिर्फ यूज होगा, ठीक है? बाकी प्रोडक्ट मार्केट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन पे। बस आपने याद रखना है MRPL कैसा होता है, इट इंक्रीजेस एंड देन इट फॉल्स। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? बाकी इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये हमने एमसीक्यूज के लिए जरा थोड़ा सा देख लिया। बाकी प्रोडक्ट मार्केट से सिर्फ स्टीपर उसकी स्लोप पे फर्क पड़ेगा, बाकी MRPL वैसा ही होता है। यस, ओलिगोपोली के अंदर, हाँ हाँ, डिफरेंट सिचुएशंस है। कोलूजन है या क्या है? कोलूजन में कौन सा कोलूजन है? सादा कोलूजन है, टेसिट कोलूजन है? सादा कोलूजन है, फिर वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। टेसिट कोलूजन है तो प्राइस लीडर डिसाइड करे। प्राइस लीडर कौन है? जो मार्केट लीडर है, जो मार्केट शेयर, जो मार्केट लीडर है वो ऐसी प्राइस सेट करेगा इतनी ऊपर कि छोटी से छोटी फर्म भी उसको चार्ज वो कर सकती। फिर उसके बाद कार्टेल है, वो तो फॉर्मल एग्रीमेंट है। कार्टेल में तो सारे म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, हो सकता है उसमें वो प्रोडक्शन कोटा भी डिसाइड कर ले। फिर लॉन्ग रन में मार्केट खुद डिसाइड करेगी कि इक्विलिब्रियम के क्या है, और वो प्राइस रिजिड होगी किंग डिमांड कर्व की वजह से। कौन? ये बना इसलिए नहीं लेते क्योंकि अब ये लॉन्ग रन में आ गए, बनाते रहे। अब ये लॉन्ग रन में आ गया, प्राइस रिजिड हो गई। वो तो लीगल पाकिस्तान में सब चल रहा है, ठीक है? तो अब ये लोग क्या आ गए? लॉन्ग रन में आ गए, रिजिड हो गई प्राइस। अब ये किस पे है? अब ये नॉन प्राइस कंपटीशन। चलें जी, अब आ जाए मेन चीज पे। मेन चीज क्या है? डू वी अंडरस्टैंड MRPL गर्ल्स? डेरिवेशन आरफा। आप किधर थी 200 साल से? क्यों? जब से ये सेशन शुरू हुआ है मेरा ख्याल से मैं आपको पहली दफा देख रहा हूं। इतना भी नहीं है? अच्छा, डेरिवेशन ऑफ लेबर डिमांड टू MRPL। लेट्स टॉक अबाउट इट। एक बंदा मुझे कमा के दे रहा है साथ 65,000 पर मंथ। मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, मैक्सिमम पे नहीं पूछ रहा, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, कितना दे सकता हूं उसको तनख्वाह, सैलरी पर मंथ? कितनी? 65। मेक सेंस? एक बंदा मुझे 30,000 कमा के दे रहा है, मैक्सिमम अगर देनी पड़ भी जाए कितनी देनी चाहिए? 30 या उससे कम। 30 से ज्यादा उसको नहीं देनी चाहिए। ये बिलिंग, ये हाँ देंगे तो हम बहुत कम ना। ये विलिंगनेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? विलिंगनेस। देंगे तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? तो विलिंगनेस टू पे डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? MRPL। डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या? डिमांड कर्व दिखाता क्या? विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स वर्कर्स, एम्प्लॉइज। डिमांड कर्व क्या बताता था? क्या बताता था डिमांड कर्व? विलिंगनेस, डेफिनेशन ही यही थी क्या? विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स एम्प्लॉइज एट डिफरेंट वेज रेट्स। ठीक है, ये देखें, ये आ गया आपका क्या?
यहां आ गई वेज, छोटा सा डिमांड कर्व बना लें, डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर क्या बताता था? इस कीमत के, इस बंदों के लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार है फर्म, इतने लोगों के लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार है फर्म, इतने लोगों के लिए फर्म इतने पैसे देने के लिए तैयार है। ऐसा ही है। और ये विलिंगनेस टू पे वो किस तरह डिसाइड कर रहा है? किस तरह डिसाइड कर रहा था कि इससे ऊपर मैं नहीं दूंगा? वो एमआरपीएल से डिसाइड कर रहा है। क्या ख्याल है कि ये बंदा इतने पैसे कमा के दे रहा है तो इससे ज्यादा मैं इसको विलिंग नहीं हूंगा? ये विलिंगनेस की बात हो रही है। असली वेज तो हम इसको देंगे कोई 10 रुपए, ठीक है, वो अलहदा बात है। नहीं, ज्यादा कभी नहीं देंगे, ज्यादा हम पागल हैं, ज्यादा कभी नहीं देंगे। मेरा एमआरपीएल जरा निकालें अभी, किस तरह निकलेगा? द रेवेन्यू आई एम हेल्पिंग देम अर्न, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों क्लासेस के ऐड कर लें, हर बच्चा एवरेज 3 वो ले रहा है सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको कर दें डिवाइडेड बाई 3। कितनी फीस है आपकी? 40 कर लें, चलें, स्कॉलरशिप वाले भी लगा लें, 30 कर लें। 30 और मेरे स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 70-80 होंगे, दोनों क्लासों के 80-90 होंगे बल्कि, ठीक है। तो 10 into 80 कर लें, क्योंकि डिवाइड बाई 3 कर लेना, हर बच्चा 3 सब्जेक्ट ले रहा है। 10 into 80 करें, कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख कमा के दे रहा हूं है। जरा आप लोग रुके, मैं जरा, चलें जी लिखें, समझ आई बात की? मिल मुझे एमआरपीएल से बड़ा कम रहा है। चलें जी, क्या लिखेंगे? आ जाए, द विलिंगनेस टू पे, द विलिंगनेस ऑफ अ फर्म to pay its workers is directly dependent on the revenue each additional worker is helping the firm earn. Hence, the downward sloping portion of the MRPL, which is below the ARPL, average revenue product of labor, average revenue product of labor is the demand for labor. जी ताहा, आप लिख नहीं रहे, रजिस्टर नहीं है, वो बाना आप कल मार चुके हैं। आज का क्या है? सोच लें, सोचें कम, एक्शन ज्यादा लें। और वो एक्शन क्या है? आप सुन नहीं रहे थे, आप डे ड्रीमिंग कर रहे थे। चलें, इधर आ जाए, लिख लिया सबने? एक्शन ये है कि या तो आप पढ़ लें, या आप आने वाली पीटीएम का किसी तरह कोई अरेंजमेंट करें कि घर ना पहुंचे पीटीएम का सीन। तीसरा हल है, आप दुआ करें कि आपके पेरेंट्स ना आए।
चौथा हल कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। 4 ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। हाँ जी, MRPL एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं है, लेकिन उसका ये सीन है, देखें वो इंक्रीज होता है एवरेज रेवेन्यू that each worker that on average every worker is helping the firm earn, और वो भी शुरू में क्यों इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स फॉलोड बाय डिक्रीजिंग रिटर्न्स, सेम एज एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर को MRPL उसके मैक्सिमम से कट करेगा। बात को जी MRPL को कट करेगा। ये जो भाइयों और बहनों, ये जो है ये MRPL है, और अभी हमने कहा है विलिंगनेस टू पे क्या है? मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे किस पे डिपेंडेंट है? MRPL पे। तो कैन आई से दिस इज द डिमांड फॉर लेबर। आज से MRPL ही डिमांड फॉर लेबर है, बट व्हाई बिलो द ARPL? देखें, फर्म निकालेगी एक एवरेज रेवेन्यू, वो किसी को भी एवरेज रेवेन्यू से ऊपर तनख्वाह नहीं देगी, वेज नहीं देगी, और बाकी हर अगले बंदे को किसके मुताबिक वेज देगी? जितना वो रेवेन्यू कमा के दे रहा है। तो all the area, the downward sloping portion of MRPL which is below the ARPL is the demand curve of that firm, is the willingness of a firm to pay its bill. बात समझ आई? Is this clear? एवरेज रेवेन्यू से नीचे एक मार्केट रेट है टीचर्स का, समझ रहे हैं? एक टीचर्स का इधर मार्केट रेट है पर क्लास, उस रेट से ज्यादा किसी, ऐसा नहीं है कि किसी को 10 लाख दे रहे, लेकिन हर टीचर का एक रेट है। वो किस पे डिपेंडेंट है मुझे बताएं? उसकी बेसिकली कोई स्किल शिल पे नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी पे, और पॉपुलैरिटी इन रिटर्न किस पे डिपेंडेंट है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही और शी टीचर्स, MRPL which is MRPL। तो पॉपुलैरिटी भी ट्रांसलेट हो रही है एक तरह से MRPL। गेम समझ आई है? हर दफ्तर में ये, हर ऑफिस में ये, ठीक है? स्किल्स किस में ट्रांसलेट होती है? द रेवेन्यू दैट वर्कर हेल्प्स देम जनरेट। तो एक एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा किसी को नहीं मिल रहा, और MRPL के मुताबिक हर अगले बंदे को वो वेज ऑफर करते हैं। फिर उसका वही हाल है जो माशाल्लाह हमारी PIA रेलवे का हाल है, फिर तो यही होता है। उधर MRPL थोड़ी देखते हैं, उधर MRPL नहीं होता, उधर क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट तो हो ही नहीं रहा, कमिश्नर को रेवेन्यू थोड़ी जनरेट कर रहे हैं। टेक्निकली उधर जो है वो ACR होता है, ACR होता है आपका बॉस आपकी वो एक बनाता है, परफॉर्मेंस का हर साल रिव्यू होता है, और वो बस आपके बॉस के साथ आपकी कैसी सेटिंग है वो। नेपोटिज्म शिज्म कोई नहीं आता, हम तो बात कर रहे हैं कोई पैसों की, उधर तो फिर बाकी तो सब चलता है। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? तो भाइयों और बहनों, आज के बाद आप, और ये जीरो पे क्यों नहीं जा रहा और नेगेटिव पे? क्योंकि नो फर्म इज स्टूपिड इनफ कि एक बंदा जो कुछ पैसे नहीं कमा के दे रहा है उसको एम्प्लॉय करे, या पैसे रेवेन्यू कम कर रहा है उसको एम्प्लॉय करे। तो आज के बाद इधर देखें, एक और बना लें, आपकी मर्जी है क्या? आप इधर लिखेंगे वेज स्लैश रेवेन्यू, आपकी मर्जी, आप इस तरह बना लें, इसको भी आप MRPL इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर लेबर कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद स्ट्रेट लाइन, एग्जामिनर भी कभी कभार MCQs में आप देखेंगे ऐसे करेगा, या फिर इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद स्ट्रेट लाइन तो आप इस तरह कर सकते हैं। MRPL ही डिमांड फॉर लेबर है। इज दिस क्लियर? पार्ट है वो नहीं आता, हाँ वो नहीं आता, लेकिन चल जाता है, चल जाता है, वो तो हमने बहुत टेक्निकल बात कर दी है, लेकिन इस तरह भी वो ये वाला भी एक्सेप्ट जो हमने ये बनाया अभी, वो ये भी एक्सेप्ट कर लेता है, ये वाला, दोनों एक्सेप्टेबल है, ये भी और ये भी। बस MRPL इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर लेबर। क्या सीखा आज? MRPL क्या होता है? हर अगला बंदा कितने पैसे कमा के दे रहा है, और डिमांड कर्व इज नथिंग बट MRPL, क्योंकि वो मैक्सिमम वेज जो विलिंग है आप पे करने के लिए वो किस पे डिपेंड करती है?
MRPL पे डिपेंड करती है। कैसा? आसान है, मुश्किल है? इससे आसान देखा है जिंदगी में कुछ? नहीं? चलें फिर, इतनी सी बात थी और आप लोग ले रहे थे टेंशन। कल आप लोगों का है टेस्ट, अभी खत्म नहीं हुई क्लास, ठीक है? All right, जी. So I will see you in the next video where we will learn the supply curves and cost curves of a perfectly competitive labor market and imperfect labor market, and we'll also get to know what monopsony means. So see you in the next video. Take care.